Now friends, let us talk about one more point under the schedule 1, where we talk about the deemed supply concept, where it is without consideration also it will be considered as supply. So let us again go to our basic definition of supply. I think this is what we have referred so far. जो original point था जो मैंने आपको सिखाया था section 7(1)(a) का, जिसमें मैंने बताया कि supply consideration in course or furtherance of business है, और अगर consideration ना हो तो then it can be treated as deemed supply provided the customer is a related party or is a distinct person, and because of that it will be considered as deemed supply applying schedule number 1. Now in the same line there is another transaction like this. It says second number point 7(1)(b), where we say importation of service for consideration whether or not in course or furtherance of business. Now let us try and understand this, or let us try and analyze this transaction. So when I say, let us say we are talking about specifically, let us say I have given an example of my sister in the previous point, that is this, I mean schedule 1 में first point जो था वहाँ पे, कि my sister is a doctor and she provides me services whenever I get sick or I feel any illness or injured, so I'll always take help of her. Now practically speaking, my sister is in USA. So since she is in USA, she is a doctor over there, let us say if I face certain problem, I'll definitely take her help. So I'll call her, she'll guide me on phone, she'll give me some medicine and prescribe me some medicine, and I'll take that and probably I'll get cured. So can I use the word as it's an importation of services? And the more important point is, our original clause says it should be an importation of services for consideration, but here my sister is a doctor and obviously she is not going to ask me any consideration and I'm not even going to pay her. So it's an importation of services for consideration. Answer is without consideration. But more important is, it is importation of services from related person. So the point which I am suggesting is just that, again the word consideration will be replaced with the word of related person. Let us try and look at that point again. So ये first number का point था, I mean rather second number है, but ये first जो हमने discuss किया था. The second aspect is this one, which is a fourth number point, which very clearly says importation of services by a taxable person. So कोई taxable person है जो service import कर रहा है, जैसे कि मैंने अपनी बात की, I am importing a service and I am a taxable person, I am a registered person. From whom? तो के from related person, and that is the only reason it is without consideration. आप logically समझो friends, कोई outside India से आपको service देगा तो obviously आपसे consideration तो लेगा ही. एक ही reason है कि consideration ना ले तो क्या, तो कि वो हमारे related person है. तो term related person will be replaced by the term consideration. So it's an importation of services by a taxable person from related person or any of his own establishment outside India. But more important is, it should be in course or furtherance of business. Now here we are creating a difference. जो original definition था ना friends, कौन सा मैं बात कर रहा हूँ? Original definition कौन सा? Supply का original जो definition है. Here it has been very clearly says importation of services for consideration whether or not in course or furtherance of business. So if it is in course or furtherance of business, then also we consider. If it is not in course or furtherance of business, then also we will consider that as supply. But ये जो clause हम पढ़ रहे हैं, that very clearly says it should be in course or furtherance of business. So some point we are deviating. It says importation of services by taxable person from related person or any of his own establishment outside India, but it should be in course or furtherance of business. Now very important, I think I have earlier also discussed, when I say whose course or furtherance of business, whether supplier or recipient. So in this transaction we need to understand we are talking about importation of services. So tax will be paid under reverse charge mechanism. So if tax will be paid by reverse charge mechanism, then we need to understand that it should be in course or furtherance of business, not from the supplier's perspective, rather it should be from the recipient's perspective. So it should be in course or furtherance of business, but not from the supplier's perspective, but from the recipient's perspective. अब वही एग्जांपल मैं वापस ले रहा हूं जो मैं अपनी सिस्टर के लिए बता रहा था कि my sister is a doctor, she is staying in USA, she is helping me with regard to getting cured from a disease or let's say injury or illness or whatever is there. So can I say it's an importation of services? Agree that it is from related person, but is it in course or furtherance of my business or is it a personal help? And the moment it is a personal help, it is not liable for GST as per point number 4. बट मान लो कि इसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करें. माई जीजा जी इज देयर इन अगेन यूएसए, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इज वर्किंग इन सम मल्टीनेशनल कंपनी इन यूएसए. Now let us say
he is helping me to prepare a website for myself. धवल गांधी एंड एसोसिएट्स करके एक वेबसाइट मैं बना रहा हूं, जिस वेबसाइट के थ्रू मैं अपना बिजनेस प्रमोट करने वाला हूं. उस वेबसाइट के लिए वो मुझे आउटसाइड इंडिया से सपोर्ट कर रहे हैं. सो कैन आई यूज द वर्ड एज इट्स एन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, कैन आई यूज द वर्ड एज इट इज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, एंड कैन आई यूज द वर्ड एज इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? यस, इट इज माई कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो इन दैट केस डेफिनेटली इट इज लायबल फॉर टैक्स एंड इट इज लायबल फॉर टैक्स अंडर RCM. Let us try and analyze one more point. Let us say, I have two sisters. One is there in USA and another is there in Australia. Let us say my second sister is a lawyer. She is working as a lawyer in Australia. Now let us say tomorrow I meet with an accident, and the party with whom I meet with an accident is fighting a legal case against me. So obviously I'll call my sister and I'll ask for some help. Please guide me. Obviously वो मेरे लिए यहाँ पे आके केस फाइट नहीं करेंगे, but at least वो मुझे गाइड तो कर देंगे ना. So obviously I'll ask her help. Can I say she'll guide me, she'll provide me support? So from outside India I'm receiving her services. It is purely considered as an importation of services and it is from a related person. Now the important point is when she is helping me to resolve a personal issue, it cannot be considered as in course or furtherance of business. But इसी transaction को थोड़ा modify करें. Let us say मेरे को अपने client के साथ एक कुछ money के regarding dispute होता है इंडिया में, तो वो हम लोग legal matter में जा रहे हैं, legal suit हो रहा है, legal case हो रहा है. Now उसके लिए मैं अपनी sister की help लेता हूँ and my sister from outside India guides me कि how can you win this case or how do you go or how do you fight in this particular case. So मैं कह सकता हूँ कि it's an importation of services from related person and it is in course or furtherance of business. Definitely it is considered as supply and it is liable for GST, and as we have discussed it is liable for GST under reverse charge mechanism applying section 9 subsection 3 of CGST Act. So I think everybody understand this particular point कि importation of services के ऊपर भी same logic apply होगा, without consideration भी वो GST के लिए liable है. The important clause is importation of services should be in course or furtherance of business and it should be from related person or any of his own establishment outside India. And logically speaking, why someone else should give it free of cost? कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे आपको? अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है. वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तभी प्रोवाइड करेंगे जब वो आपके रिलेटेड पर्सन हो गए, और अगर रिलेटेड पर्सन आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट कहीं पे भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन वी टॉक ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, सो यस इट इज लायबल फॉर जीएसटी इवन इफ इट इज विदाउट consideration. So I think everybody understands. Let me give one more example. I think one of the example which I can give is an actual case or rather actual thing that is happening today. I think I can give an example of this Jeep Compass car जो इंडिया में आज बेचा जा रहा है और उसका सेल बहुत बड़ा अच्छा हो रहा है. In fact, when I say Jeep Compass, so who is the parent company? Jeep तो एक brand name है. What is the name of the company? The name of the company is Fiat Chrysler. I think it's an Italian and I think US, Chrysler was US more or less, so some Italian company somewhere outside India. So मान लीजिए कि Fiat Chrysler is an Italian based company जिनका ब्रांड नेम है जीप और उन्होंने एक कार डेवलप किया कॉल्ड जीप कंपास. Now ये कार बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो टेक्नोलॉजी जो नो हाउ फॉरेन कंपनी के पास अवेलेबल है. Now उन्होंने इंडिया में एक सब्सिडरी ओपन किया कॉल्ड Fiat Chrysler India Private Limited और ये कंपनी इंडिया में कार असेंबली कर रहा है. सो ये नो हाउ की जरूरत इस कंपनी को है. सो मान लो कि फॉरेन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी को ये नो हाउ पास ऑन कर रहा है और इंडियन कंपनी इस नो हाउ को यूज करके इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और गाड़ी बना के हमें प्रोवाइड कर रहा है. नाउ द पॉइंट इज फॉरेन कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस नो हाउ, दिस टेक्नोलॉजी टू इंडियन कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट. So can I use the word as it's an importation of services, and can I say from your own establishment outside India, and more important it is in course or furtherance of business, then by default it is liable for GST under the original clause of supply. So that means under the schedule 1 of supply. So the point is अगर मान लीजिए कि फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी से कंसिडरेशन लिया होता तो एज पर सेक्शन 7(1)(b वो सप्लाई माना जाता क्योंकि इट्स एन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन. एंड अगर मान लो कि सब्सिडरी कंपनी से सप्लाई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एज पर 4th नंबर पॉइंट because it says there is an importation of services by a taxable person
from a related person or any of his own establishment outside India, and it should be in course or furtherance of business. So I think everybody understand this particular point, which is the fourth number point. So we have discussed yet only 2 points with regard to supply, items or activities or the transactions that can be treated as supply even if they are made without consideration. We have discussed the second number point and we have discussed the fourth number point. Both of them will be treated as supply even if they will be done without consideration. Now there are more transactions also which can be treated as supply even if they are without consideration. Now let us try and understand why such provisions have been made. फिर मैं प्रोविजंस एक्चुअल बताऊंगा. तो आई थिंक हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि भाई मैंने आपको दोनों पॉइंट में एक ही चीज समझाया है कि देखो नॉर्मली जब ट्रांजैक्शन होता है तो इट ऑलवेज गोज थ्रू कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन होने का लॉजिक रीजन यही बनता है कि भाई वो आपका रिलेटेड पर्सन है, एंड बिकॉज वो आपका रिलेटेड पर्सन है तो आप उसको सेकेंड नंबर के पॉइंट में या फोर्थ नंबर के पॉइंट में लाके उसके ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी चार्ज कर लोगे. बट और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिसमें मान लो कि हम कंसिडरेशन भी नहीं ले रहे और वो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है. ऐसा सबसे पहला ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं कंसाइनमेंट बिजनेस की. कंसाइनमेंट बिजनेस को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज दैट, जिसमें होता क्या है, जब मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स किसको भेजता है, कंसाइनमेंट एजेंट को भेजता है, और जब मैन्युफैक्चरर कंसाइनमेंट एजेंट को गुड्स प्रोवाइड करता है, अल्टीमेटली कंसाइनमेंट एजेंट ये गुड्स कस्टमर को ऑफर करता है. तो जब कंसाइनमेंट एजेंट ये गुड्स कस्टमर को ऑफर करेगा तब जाके ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन जनरेट होगा और वो कंसिडरेशन कस्टमर की तरफ से हमें मिलता है. सो द पॉइंट इज कभी भी एजेंट तो हमें कंसिडरेशन ही नहीं देगा. अब सोचो फ्रेंड्स, मान लो कि मैं मिस्टर ए हूं, मेरा एजेंट है मिस्टर बी, तो मैंने गुड्स बना के उस बी एजेंट को ट्रांसफर किए और मैंने उसे बोला कि तू आगे बेच देना. वो किसी सी कस्टमर को ढूंढ रहा है और सी कस्टमर को बेच दिया, तो सी कस्टमर कंसिडरेशन देगा. वो कंसिडरेशन तो कस्टमर मुझे देने वाला है. कोई बोले नहीं सर बी को भी दे सकता है ना, ठीक है, तो बी को देगा तो वो तो मेरे बिहाफ पे देगा. So B will receive it, but it will be received on my behalf. So it is as good as the consideration is received by me. So customer will give me consideration, but agent तो मेरे को consideration नहीं देगा ना, और एजेंट कंसिडरेशन नहीं देगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रांसफर. मैंने उन्हें गुड्स दिए. ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन याद करो फ्रेंड्स, देयर शुड बी सप्लाई, देयर शुड बी कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. देयर इज सप्लाई, देयर इज कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट देयर इज नो कंसिडरेशन, तो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन में तो आएगा नहीं. So that is where this third point comes in, which very clearly says that supply of goods by a principal to agent or by an agent to principal will be called as supply. So that is where friends we are deviating from accounting perspective. क्या होता है फ्रेंड्स, जब मैं अकाउंट्स की बात करूं ना तो मैं एजेंट को अगर गुड्स देता हूं ना तो इट इज एज गुड एज गुड्स अभी भी मेरे ही है. दे आर ओनली लाइंग विद द एजेंट. वी डोंट कंसिडर दैट एज सेल ट्रांजैक्शन. जब एजेंट वो गुड्स कस्टमर को बेचता है तो इट इज रिकॉर्डेड एज सेल्स इन माय बुक. सो अकाउंटिंग इज डिफरेंट एंड जीएसटी इज डिफरेंट, because in GST we don't follow the term of sale. I mean rather we follow term of sale, but the actual term that we follow is supply. Supply is a broad term. It includes sale as well as it includes transfer. तो जब मैं एजेंट को गुड्स देता हूं ना फ्रेंड्स, तो एजेंट को गुड्स देने के टाइम पे मैं ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं कि ये गुड्स मैंने आगे बेचने के लिए उसे दिए, तो एक्चुअली बेचा तो है नहीं, तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सेल तो हो नहीं रहा है, बट जीएसटी पर्सपेक्टिव से ट्रांसफर हो चुका है, तो जिसके कारण हम उसको सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर कर लेते हैं. सो सप्लाई इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू सेल टर्म. So it may so happen that a particular transaction is not a sale but is definitely a supply applying the concept of schedule 1. So what will happen is, in fact मैं बताऊं, जब आप एजेंट को गुड्स देते हो ना तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से तो अभी भी वो आपके स्टॉक में रहता है. आपको पता ही होगा अकाउंट्स में आप स्टॉक दिखाते हैं तो स्टॉक में कुछ स्टॉक आप बताते हैं लाइंग विथ यू, फिर कुछ स्टॉक आप बताते हैं लाइंग इन वेयर हाउस. ऐसे ही कुछ स्टॉक होता है जिसमें हम बोलते हैं कि स्टॉक लाइंग विद द एजेंट, विद कंसाइनमेंट एजेंट. सो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, खाली गुड्स अपने वहां से उसके वहां पे गए. जबकि जीएसटी पर्सपेक्टिव से ये सप्लाई हो चुका है, क्योंकि जब आपने एजेंट को गुड्स दी है तो इट हैज बीन ट्रांसफर, जिसके लिए भले कंसिडरेशन नहीं होने वाला है, बट ये पॉइंट अप्लाई हो जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल. So applying this concept, we will definitely call it as supply, on which GST should be charged. So supply of goods by a principal to agent is what we are considering under this point, which is third number point.
See, always keep this in mind. By a principal to agent is the terminology which we are using. Or it also says by an agent to the principal. So by a principal to agent or by an agent to the principal. These are the two perspectives. See, कभी कभी क्या होता है कि agent को जो goods दिए ना, he is not able to successfully sell it. So at the end of some period, he will return those goods back to you. So then it will be considered as supply of goods by an agent to principal. क्योंकि जब हमने उसे दिए थे तो हमारे लिए वो सप्लाई हो चुका था जीएसटी में, जब वो हमें वापस दे रहा है तो इट इज एज गुड एज उसके लिए सप्लाई हो रहा है जीएसटी में. एंड अकॉर्डिंगली दोनों पर्सपेक्टिव में जीएसटी चार्ज होगा, आईटीसी अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो जाएगा. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. जीएसटी में जब एजेंट को गुड्स दिए जाए तो दैट इटसेल्फ इज सप्लाई. कोई बोले तो सर व्हाट इफ कि अगर मैंने एजेंट को गुड्स दिए, चलो मान लो इसके हिसाब से सप्लाई हो गया, फिर जब एजेंट आगे कस्टमर को देगा तो कि इट इज फर्दर सप्लाई एंड नाउ दैट सप्लाई विल बी ऑफ एजेंट नॉट ऑफ माइन. माने होगा क्या, जब मैंने एजेंट को दिया ना तो इट इज माई सप्लाई, जब एजेंट आगे कस्टमर को देगा तो इट इज कंसिडर्ड एज एजेंट सप्लाई. एंड मैं बताऊं, एजेंट जब सप्लाई करेगा तो उस टाइम पे वो जीएसटी भरेगा, और जब मैंने एजेंट को सप्लाई किया है उस टाइम पे मैंने जीएसटी भरा है, और मैं जीएसटी उससे लेके भरूंगा, सो अल्टीमेटली एजेंट को आईटीसी मिल जाएगा. सो एजेंट के इनवर्ड परचेज तो नहीं बोल सकता, इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी था उसका वो आईटीसी ले लेगा, और उसका जो आउटवर्ड सप्लाई उस पे वो जीएसटी भरने के लिए उसे यूज कर देगा. जबकि अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव क्या होगा, जब एजेंट कस्टमर को बेचेगा तभी वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा एज सेल्स. सो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सेल लेटर ऑन रिकॉर्ड होता है, जबकि जीएसटी पर्सपेक्टिव से सप्लाई बहुत पहले रिकॉर्ड हो जाता है. Only thing, see why they brought this transaction over here is because of the consideration. याद रखना कि जब भी आप एजेंट को गुड्स देते हो एक भी रुपए का कंसिडरेशन जनरेट नहीं होता है. बट इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट जनरेटेड, इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. नो, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, एंड दैट इज वाई वी विल कंसिडर दैट एज सप्लाई अप्लाइंग शेड्यूल नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 which is supply of goods by a principal to agent or by an agent to principal. So I think everybody understand this point. So friends, logical है कि देखिए मैंने आपको कहां से स्टार्ट किया था कि सप्लाई होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए. सप्लाई है, कंसिडरेशन होता ही है, और बिजनेस भी होने ही वाला है. कंसिडरेशन ना होने के अलग अलग रीजन हो सकता है, जिसमें सबसे पहला रीजन है कि रिलेटेड पर्सन. अगेन रिलेटेड पर्सन, अगर रिलेटेड पर्सन है तो हम उसे सप्लाई की डेफिनेशन में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं. अब मैं ये सिखा रहा हूं कि मान लो कि रिलेटेड पर्सन नहीं है तो क्या, तो क्या शायद एजेंट हो सकता है. तो अगर एजेंट है तो एज पर 3rd नंबर क्लॉज. कोई बोले कि नहीं सर एजेंट भी नहीं है तो क्या, तो कि देन ऑल्सो देयर इज अ क्लॉज अवेलेबल जो यहां पे दिया हुआ है एज क्लॉज नंबर 1 विच सेज कि भाई परमानेंट ट्रांसफर और परमानेंट डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन और हैज बीन क्लेम्ड. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Now friends, let us first understand this particular aspect, that what do we understand by the term business asset and why such particular provision has been brought. So business asset is precisely nowhere defined. So does it mean only fixed assets or will it also cover current assets is an open-ended topic. But I believe that anything like whether fixed asset or current asset, anything will be considered as at least a business asset. फिक्स असेट होगा तो भी वो बिजनेस की एक असेट है, करंट असेट्स है तो भी वो बिजनेस की एक असेट है. एंड व्हेनेवर देयर इज अ परमानेंट ट्रांसफर और परमानेंट डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, सो लेट अस एनालाइज दिस पॉइंट. सो लेट अस से मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरा कपड़े का शोरूम है और उस शोरूम में से मैं कपड़े बेचता हूं और कस्टमर से कंसिडरेशन लेता हूं, एंड दैट इज वेयर वी कंसिडर दैट एज सप्लाई एंड लायबल फॉर जीएसटी एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. फिर मैं आपको यह बताया कि अगर मेरी सिस्टर वहां पे आती है कपड़े की दुकान पे और मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में कपड़े दे देता हूं, तो ऑब्वियसली दैट शुड आल्सो बी लायबल फॉर जीएसटी बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बट द रिलेशन इटसेल्फ इज अ कंसिडरेशन. सो दैट इज वेयर मैंने आपको समझाया था कि ये पॉइंट बीच में आ जाएगा. अब मान लो कि मेरा फ्रेंड आवे तो और मैं फ्रेंड को फ्री में दे दूं, तो अगर मैं अपने फ्रेंड को फ्री में दे दूं तो क्या, सो ना 7(1) अप्लाई होगा ना ये क्लॉज अप्लाई होगा. क्यों, तो कि माई फ्रेंड इज नॉट माई रिलेटिव. So in that case, I think this point should become relevant because जो मैं उसे दे रहा हूं कपड़े की दुकान में से, मैं उसे कपड़े दे रहा हूं. कपड़े इज अ स्टॉक, स्टॉक इज अ करंट असेट मींस इज अ बिजनेस असेट. सो जब मैं बिजनेस असेट को परमानेंट बेसिस पे किसी को ट्रांसफर कर देता हूं,
या परमानेंट बेसिस पे किसी को डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, आई मीन लाइक उससे उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब वो स्टॉक मैंने परचेज किया होगा तो मैंने उसके ऊपर आईटीसी भी क्लेम किया होगा। तो कि अगर मैंने परचेज करने के टाइम पे आईटीसी क्लेम किया है और अगर उस स्टॉक को परमानेंट बेसिस पे मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, तो एज पर जीएसटी वी विल कॉल इट एज सप्लाई एंड वी विल आस्क यू टू पे जीएसटी। एंड लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब परचेज करके लाए थे आपने आईटीसी लिया था, ये बोल के कि आप गुड्स को ऐसी जगह यूज करने वाले हो जो लायबल फॉर जीएसटी है। अब यूज करने की जगह पे आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो जब आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से तो वो सप्लाई है और सप्लाई है तो आप जीएसटी भरो, और जीएसटी भरने के लिए यही आईटीसी यूज करके मैटर 0 कर दो। सो अल्टीमेटली स्पीकिंग एक बाजू आईटीसी लिया और दूसरी बाजू उसकी इफेक्ट को 0 करवा दिया गवर्नमेंट ने। एंड वही होना चाहिए फ्रेंड्स कि आप लाए, आपने आईटीसी लिया, परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफर किया या परमानेंट बेसिस पे डिस्पोज ऑफ किया, तो इन दैट केस इट इज लायबल फॉर जीएसटी। सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये जो पॉइंट बनाया है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वो बहुत लॉजिकली सोच के बनाया गया है और अलग अलग पॉइंट अलग अलग सिनेरियो में ड्राफ्ट हुए हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं। लेट अस से मैं नवकार की ही बात करता हूं। ये नवकार में हमने आई थिंक 2-3 साल पहले हुआ था नवकार में ऐसा। What happened is, नवकार ने कुछ एसी बाय किए हुए थे, जो आई थिंक nowadays आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड, जो हमारे ये प्रीमाइसेस में जो एसी है वो तो कैसेट एसी है, जो पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है। बट आई थिंक जो हमारे पुराने रेंटेड प्रीमाइसेस थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नवकार हाउस 1 और 2 और 3 और निमरा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड प्रीमाइसेस जो रेंटेड प्रीमाइसेस थे, उन सब में जो नॉर्मल स्प्लिट एसी और विंडो एसी होते हैं ना, वो हमने फिक्स किए थे। अब इवेंचुअली हमने अपने खुद के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो ये सारे जो रेंटेड प्रीमाइसेस हमने वैकेंट कर दिए, और ये सारे रेंटेड प्रीमाइसेस में जो एसी फिक्स किए हुए थे वो सारे के सारे एसी अल्टीमेटली वहां से निकाल दिए गए। अब कुछ टाइम पहले ऐसा था, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, विद प्री जीएसटी एरा में ऐसा हुआ था। जीएसटी आने के बाद अगर हुआ होता तो हम बहुत बड़े झमेले में आ गए होते। बट आई थिंक 2015 में या 2014 में ऐसा हुआ था कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसे 50 एसी पड़े थे, क्योंकि जो हमारे नए प्रीमाइसेस है उन सब में हमने नए कैसेट एसी ऑफ हाई कैपेसिटी इंस्टॉल किए। तो जो पुराने जो विंडो एसी और जो क्या बोलते हैं स्प्लिट एसी थे, ऐसे 50 एसी पड़े थे नवकार के बेसमेंट में। तो एक दिन हितेश ने सोचा इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि उन्होंने बुलाया क्या बोलते हैं एसी वाले को, बोले ये कितना मिलेगा, तो एसी वाला बोलेगा कि 5,000 के 10,000 के, अलग अलग एसी के डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अलग अलग प्राइस होगा। अब मान लो कि हितेश सर ये भी एसी बेच दे, तो उस केस में तो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन आ जाएगी। क्यों? तो कि एसी बेचना हमारा मेन बिजनेस नहीं है, बट वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए करने वाला इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी है, और इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी बिजनेस है और उससे बेचा यानी सप्लाई है, और सामने से कंसिडरेशन आ रहा है, तो एज पर सेक्शन 7(1)(a इट इज लायबल फॉर जीएसटी। बट हितेश सर नेवर सोल्ड इट। व्हाट ही डिड इज, उन्होंने एस्टीमेट निकाला कि भाई 50 एसी है, एक का 5,000, एक का 7,000, एक का 10,000 है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, तो कि 3-4 लाख रुपए होंगे। नाउ इट मे नॉट बी अ बिग अमाउंट फॉर पर्सन लाइक हिम, सो व्हाट ही डिड इज ही थॉट कि 3-4 लाख मिलने से अच्छा है मैं एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने सारे एम्प्लॉय को बुलाया और बोला जिसको जो एसी चाहिए ले जाओ। तो अगर वो अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग एसी ले जाते हैं, सो पॉइंट इज जब आप एसी परचेज करके लाए थे तब आपने एसी के ऊपर आईटीसी लिया था, ये बोल के कि आप एसी को यूज करोगे इन प्रोवाइडिंग आउटपुट्स विच आर लायबल फॉर टैक्स। अब या तो आपने बिल्कुल ही यूज नहीं किया या फिर आपने थोड़ा यूज किया और फिर उन एसी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो क्या अगर तुम डिस्पोज ऑफ करोगे तो हमारे हिसाब से वो सप्लाई है, और अगर वो सप्लाई है तो उसे जीएसटी भरना पड़ेगा, और वही जीएसटी भरने के लिए आपको आईटीसी यूज करना है। अगर मान लो आप आईटीसी कोई और जगह यूज कर चुके हो तो आप कैश में भर दो, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट तुमसे इक्वल अमाउंट का टैक्स भरवा के रहेगा, या जो भी अमाउंट लगेगा। अगर हाफ यूज्ड है तो आई थिंक उस टाइम पे वैल्यू भी कम आएगा, तो वैल्यूएशन के हिसाब से हाफ अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। बट पॉइंट इज अल्टीमेटली एक बार जो तुमने आईटीसी लिया है और अगर इन चीजों को तुम डिस्पोज ऑफ करोगे तो तुम्हें उसकी इफेक्ट को 0 करना पड़ेगा। उसी के लिए ये फर्स्ट नंबर का क्लॉज बनाया गया है। So always keep this in mind that whenever you talk of permanent transfer or permanent disposal of a business asset on which ITC has been taken or has been claimed, then obviously you are liable to pay GST as per this first number clause. अच्छा, एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बोला बिजनेस असेट क्या होगा, फिक्स असेट, करंट असेट क्या होगा। So as I said, nowhere it is defined. So practically speaking, we include all the type of assets. But
एक्चुअली स्पीकिंग आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को मर्ज करना है विथ आईटीसी चैप्टर। आईटीसी चैप्टर में एक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 करके एक सेक्शन है जो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में है, जहां पे बोला है कि इतनी चीजों का क्रेडिट ऑलवेज ब्लॉक रहेगा। उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो ये कहता है कि अगर हम लोग कोई भी गुड्स जो लॉस्ट हो जाए, या कोई भी गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो जिसकी वैल्यू राइट ऑफ हो जाए, या फिर जिसे हम फ्री सैंपल की तरह दे दें, या फिर जिसे हम गिफ्ट में दे दें, उन सब का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इनफैक्ट क्लॉज एच। मैं ब्लॉक क्रेडिट के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, जहां बहुत क्लियरली बोला है कि कोई भी गुड्स जो लॉस्ट हो जाए, जो डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वैल्यू राइट ऑफ हो जाए, जिसे आप सैंपल की तरह दे दो, जिसे आप गिफ्ट में दे दो, तो ये सारी चीजों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सो अगर मान लो कि किसी प्रोडक्ट को मैं, जैसे मैंने बताया कि हितेश सर ने सारे एसी गिफ्ट में दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ जिसको जो ले जाना है, तो इफ दैट हैपन्स, तो कैन आई यूज द वर्ड एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, शायद ये चीज का क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। सेम वे जैसे मैंने बोला, मेरा फ्रेंड आएगा मेरे शोरूम पे और मैं उसे फ्री में कपड़े दे दूंगा, तो अगेन एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच इसका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। और अगर उसका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आईटीसी इज नॉट बीन टेकन, और अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो आई थिंक दिस शेड्यूल 1 इज नॉट एप्लीकेबल। तो शेड्यूल 1 का ये पॉइंट तभी आएगा जब हम लोग ये आईटीसी क्लेम करें, और अगर आईटीसी क्लेम करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। अगर मान लो कि एज पर ब्लॉक क्रेडिट कंसेप्ट उसका आईटीसी क्लेम ही नहीं हो रहा है, या मान लो कि ओरिजिनली क्लेम किया था बट बाद में रिवर्स करवा दिया गया है, तो उस केस में आई थिंक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच ओवर रूल करेगा, और उसके कारण आपको वहीं से क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और अगर वहीं से क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो ये वाला पॉइंट कहीं पे भी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। सो डुप्लीकेशन नहीं होगा, या तो आप वहां से क्रेडिट रिवर्स कर लो, या फिर आप क्रेडिट रखो तो एज पर दिस क्लॉज आप उसके ऊपर जीएसटी भरो। दोनों में से आपको जो करना है वो आप कंसिडर कर सकते हो, बट शेड्यूल 1 आपको ओवरऑली ऐसी एक्टिविटीज को कवर करके देगा जहां पे कंसिडरेशन जनरेट नहीं हो रहा है। I think everybody understand mota moti all the examples that we have discussed with regard to schedule 1. So I'm just putting end to schedule 1 and moving towards the subsequent category, that is schedule number 2, friends. Now friends, let us talk about schedule 2. So schedule 2 में अगर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो basically schedule 2 कहां से आता है? So सबसे पहले section 7(1)(d) जहां से ओरिजिनली शेड्यूल 2 कवर हो रहा था, एंड शेड्यूल 2 एज वी हैव आल्सो डिस्कस इन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 दैट इट ओनली सेग्रीगेट्स दैट व्हाट शैल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट शैल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो प्योरली स्पीकिंग इट गिव्स अ सेग्रीगेशन कि किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, एंड इट इज कवर्ड बाय एज आई सेड अ पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। अब एक बहुत बड़ा डिबेट क्रिएट हुआ था फ्रेंड्स उसके ऊपर, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग उसके कारण एक अमेंडमेंट भी आया है, और वो जो अमेंडमेंट आया है उसके कारण क्या चेंज आया है वो भी हमें डिस्कस करना है। बट बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस दैट अमेंडमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज अ डिबेटेबल इश्यू फॉर विच द अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट। इनफैक्ट ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जो रेट्रोस्पेक्टिवली लाया गया है, एंड इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, फॉर द इंडस्ट्रीज। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शायद प्रॉब्लम में फंस सकते थे वो ना फंसे, उसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है और बेनिफिशियल सिचुएशन लाई गई है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक्चुअली व्हेन आई से 7(1)(d) यानी ये सेक्शन 7 की बात कर रहा है। सेक्शन 7(1) बेसिकली इज अ सप्लाई सेक्शन कि अलग अलग कैटेगरीज में चीजें सप्लाई में कवर होती है अंडर सेक्शन 7(1). सो 7(1)(a) कुछ टाइप के सप्लाईज की बात करता है, 7(1)(b) कुछ और टाइप के सप्लाईज की बात करता है, 7(1)(c) कुछ और टाइप के सप्लाई की बात कर रहा है, और उसी में आगे था 7(1)(d) जो कुछ और टाइप के सप्लाई की बात कर रहा है। नाउ एक्चुअली स्पीकिंग जो 7(1)(d) है वो तो ये क्लॉज है कि किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अब डिबेट यहां पे आता है फ्रेंड्स कि व्हाट अबाउट दोज एक्टिविटीज which may not fall under the definition of supply under these 3 categories. Yes friends, मैं वापस बोल रहा हूं,
What about those activities which may not fall under the terminology of supply under all these categories? So ये अलग अलग कैटेगरीज है, और अगर मैं जिस एक्टिविटी की बात कर रहा हूं अगर वो सप्लाई है एज पर 1, 2 और 3 कैटेगरी, देन यस ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है कि वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. बट व्हाट इफ जिस एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं वो इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आता है. सो लॉजिकली स्पीकिंग इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई. बट क्या अगर मान लो कि वो 7(1)(d) में आ रहा है और 7(1)(d) में बोला हुआ है कि दिस एक्टिविटी शुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सो क्या हम उसे सप्लाई मानेंगे? सो बेसिकली द डिबेट ये है कि जो ओरिजिनल सप्लाई के क्राइटेरिया में ही फॉल नहीं हो रहा है, कैन इट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप्लाइंग 7(1)(d)? सो ये डिबेट बहुत बड़ा झमेला बन रहा था, और एक्चुअल में जैसे ही मैं आपको ये शेड्यूल 2 बताऊंगा ना, मैं वहां पे बताऊंगा भी 2-3 ऐसी एक्टिविटीज है जो एक्चुअली कहीं पे भी सप्लाई के क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रही है, और बिकॉज वो सप्लाई के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही है तो हमारे हिसाब से वो सप्लाई नहीं है, और अगर हमारे हिसाब से वो सप्लाई नहीं है तो फिर वो क्यों ढूंढना कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज? इट शुड बी कंप्लीटली इलॉजिकल. सप्लाई हो फ्रेंड्स तो सप्लाई ऑफ गुड या सर्विस आता है ना. व्हाट इफ सप्लाई इटसेल्फ इज नॉट देयर? सप्लाई के टर्मिनोलॉजी को ही मैच ना करें तो फिर क्या का क्वेश्चन के सप्लाई ऑफ गुड्स के सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सो ये पॉइंट एक्चुअली कहीं एड्रेस नहीं हो रहा था. सो व्हाट हैपेंड इज ये 7(1)(d) वाले क्लॉज को गवर्नमेंट ने अमेंड किया. अमेंडमेंट आया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A. So now not section 7 subsection 1 clause D. Now a new subsection got introduced known as section 7 subsection 1A. Effectively और कब इंट्रोड्यूस हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है. इंट्रोड्यूस हुआ ऑन 1 February 2019 बट गिविंग इफेक्ट फ्रॉम 1 July 2017. सो इंट्रोड्यूस तो February 2019 में, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद. बट पॉइंट इज it has been given effect directly from the original date, that is 1 July 2017. क्या बोला है ये particular point में? So it says where certain activities or transactions constitute as supply. So point is a transaction should be called as supply. Where a certain activity or transaction constitute as supply under section 7 subsection 1. Now whether 7(1)(a) or 7(1)(b) or 7(1)(c) becomes irrelevant, but a particular transaction should mean or should constitute as supply under section 7 subsection 1, then it shall be treated as either a supply of goods or a supply of services applying schedule 2. So schedule 2 की applicability को यहाँ सीधा restrict कर दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जस्ट बिकॉज शेड्यूल 2 में लिखा है डजंट मीन इट इज सप्लाई. इट कैन बी कॉल्ड एज सप्लाई ओनली बाय वर्च्यू ऑफ 7(1), एंड इफ इट इज अ सप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ 7(1), then we will discuss that whether it is supply of goods or supply of service, and for that we will follow schedule 2. So point is very clear that whether a particular transaction is supply or not becomes a predetermined point. If that is supply, then every schedule 2 point is relevant, otherwise schedule 2 becomes irrelevant. जब ओरिजिनली 7(1)(d) में वो था ना, तब ये पॉइंट पे कोई क्लैरिटी नहीं था. इनफैक्ट ये डिबेटेबल था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो सप्लाई ही नहीं है उसे सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. इसका कोई आंसर नहीं था. सो गवर्नमेंट ब्रॉट एन अमेंडमेंट एंड इट वाज अ वेलकम चेंज फॉर इंडस्ट्री. आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड. फर्स्ट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन शुड क्वालिफाई एज सप्लाई अप्लाइंग सेक्शन 7 subsection 1. Then only the question that whether it is supply of goods or it is supply of services will become relevant, will come in picture. So schedule 2 तभी relevant है जब original 7(1) के हिसाब से वो transaction supply हो. Now let us move towards section 7(1)(a), that is schedule 2, जहाँ पे activities को mention किया है, segregate किया है as supply of goods or as supply of services. बट बिफोर वी एक्चुअली डू दैट कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है जो आपको क्लिक होने चाहिए. फ्रेंड्स देखो, जहां कहीं पे भी ओनरशिप की बात होगी ना,
जहां कहीं पे भी टाइटल की बात होगी, ओनरशिप की बात होगी, अगर टाइटल ट्रांसफर हुआ है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है, वी विल डेफिनेटली कॉल इट एज सप्लाई ऑफ गुड्स, because title means goods, ownership is related to goods. So when I say whenever there is a transfer of title, we will call it as supply of goods. But अगर मान लो कि कोई title involved है ही नहीं, so कोई ownership involved है ही नहीं, it is purely a transfer of possession, then it should not be called as supply of goods, rather it should be referred as supply of services. ये चीज आपको समझ में आना चाहिए. Ownership transfer हो रहा है कि possession transfer हो रहा है. अगर खाली possession transfer हो रहा है तो इट शुड ऑलवेज बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है इट शुड ऑलवेज बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. ये भी एक पॉइंट है कि ओनरशिप आज ट्रांसफर हो रहा है कि फ्यूचर ट्रांसफर हो रहा है, तो कि भाई आज ओनरशिप ट्रांसफर हो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट. तो जब फ्यूचर डेट में ओनरशिप ट्रांसफर होगा तो दैट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. रीजन इज वेरी क्लियर कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो रहा है ना. बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं लाइक हायर परचेज में पोजेशन आज मिल जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करें. बट पॉइंट इज कैन आई से ओनरशिप ट्रांसफर होगा, अगर होगा तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दो दैट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट. सो जब भी हम किसी को हायर परचेज में अगर मशीन या कुछ देते हैं तो वेदर इट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो एज पर शेड्यूल 2 इट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, दो दी ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट. सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वही चीज कंसेप्ट आपको पूरे एनालिसिस में कहीं ना कहीं यूजफुल होगा. सो लेट अस एक्चुअली सी द शेड्यूल 2 फ्रेंड्स. नाउ एज पर शेड्यूल 2, what we need to understand is we are just talking about the bifurcation, that what shall be called as supply of goods and what shall be called as supply of services. So one of the first point over here will be, when I say supply of goods, it should relate to title transfer. So as mentioned, any transfer of title in goods. So जहां कहीं पे भी title transfer होगा ना, इसे हम always supply of goods बोलेंगे, और वो transfer जब भी होगा title, वो supply of goods की category में qualify हो जाएगा. The second point, as we have already discussed, any transfer of title in goods under an agreement that provides property in goods will pass at a future date. So yes, the transfer of title will be done, but the transfer of title will not be done today. It will be done at a future date upon payment of full consideration. So आज तो खाली एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में एक कंडीशन है कि फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, फ्यूचर डेट पे टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन. सो जब फुल कंसिडरेशन जनरेट होगा तभी वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा. So that is clause number 2 which we are referring. So in both the cases we need to understand, जहां कहीं पे भी ओनरशिप ट्रांसफर होगा we will call as supply of goods. चाहे वो ओनरशिप आज ट्रांसफर हो रहा है कि चाहे वो ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर हो रहा है. इनफैक्ट हायर परचेज तो आपको समझ में आता ही है. वन मोर एग्जाम्पल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फाइनेंशियल लीज. आई थिंक सब लोग लीजिंग समझते हैं. उसमें दो टाइप के लीज होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल लीज, दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंशियल लीज, तो फाइनेंशियल लीज में ओनरशिप ट्रांसफर होता है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, जबकि ऑपरेटिंग लीज में पोजीशन वापस मिल जाता है. माने जो मशीन, मान लो कि मैंने मशीन लीज पे दिया है, तो एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग लीज दे विल गिव द मशीन बैक टू मी. While in case of financial lease, what will happen is at the end of the lease period, the lessee will pay some amount and will get the ownership of the goods. So that is where we considered as ownership will be transferred at a future date, and since the ownership will be transferred at a future date upon payment of some consideration, that will definitely fall under the definition of supply of goods. So keep this in mind. Both the transaction will fall under supply of goods category. Reason is in both of them the ownership is getting transferred. Let us look at the third transaction in this category, and that is more or less related to what we have discussed. कि आपको याद होगा हम लोगों ने बिजनेस की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जब कोई एसोसिएशन या कोई बॉडी अपने मेंबर को सर्विस देगा तो वो उनका बिजनेस ही माना जाता है. तो सेम कंसेप्ट इज, जब कोई एसोसिएशन या बॉडी अपने मेंबर को गुड्स दे रहा है, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, तो इट इज एज गुड एज द association or body is serving the member, or rather it is as good as the association or body is transferring the goods to the member.
अब association is a separate entity under GST, is a separate person under GST, and a member is also a separate person under GST. तो जब एक individual person, एक legal person जब दूसरे individual person को अगर goods दे रहा है तो it is as good as the transfer of title has taken place, which will definitely be considered as supply of goods, applying point number 3. Similar way, जो fourth number का point है, it is exactly same which we have discussed in schedule 1 as last point, कि permanent basis पे अगर transfer कर दिया जाए या disposal कर दिया जाए किसी business asset का, तो हम उसे supply मानेंगे. तो जैसे मैंने बताया था कि हितेश सर जो नवकार के ओनर है, उन्होंने AC सारे एम्प्लॉइज को फ्री में दे दिए थे, तो उस केस में हम लोग उसे सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करते थे. तो पॉइंट इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और इज इट सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो कि यही क्लॉज हमें कह रहा है कि जब परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है तो इट शैल डेफिनेटली बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स रादर देन बीइंग कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की टर्मिनोलॉजी में कवर हो जाता है फ्रेंड्स. ना फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और आई थिंक सेम चीज अभी हमने रेफर कर लिया है. बट जो 5th पॉइंट है ना, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट है. एंड इनफैक्ट यही वो एक डिबेटेबल पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहा था कि 7(1)(d) और बाद में जो सेक्शन 7(1)(a) आया, उन दोनों में जो क्लैरिफिकेशंस या जो अमेंडमेंट आया उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन यही था. Let us first try and discuss this point and then I'll come back to you on this. It says goods forming part of the assets of any business shall be deemed to be supplied in course or furtherance of business when the person ceases to be a taxable person. मैं वापस बता रहा हूँ. It very clearly says that goods which are forming part of any asset of any business or goods which are considered as an asset of any business shall be deemed to be supplied in course or furtherance of business when that person ceases to be a taxable person. Now friends, practically speaking, this is a debatable point. Why? See friends, दो चीज होती है. एक होता है कि मैं बिजनेस बंद कर दूं और दूसरा होता है मेरा बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए. ये दोनों अलग चीजें हैं. अगर मान लो कि मैं एक लेट्स से एक कंपनी चला रहा हूं या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा हूं या कोई भी टाइप का एंटिटी चला रहा हूं एंड उस बिजनेस के लिए मैंने कुछ असेट्स परचेस किए थे और उन असेट्स के ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम किया था. अब मान लो कि मैं वो बिजनेस को क्लोज कर देता हूं. सो जो भी असेट्स बचे होंगे वो सारे असेट्स एज ए ओनर मैं ले जाऊंगा. सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि द एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिजनेस टू द इंडिविजुअल नेम. एंड इफ यू डू रिमेंबर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बिजनेस की डेफिनेशन की, जहां पे ऐसा बोला था कि बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बिजनेस के क्लोजर टाइम पे कोई भी असेट्स अक्वायर किया जाए या कोई भी असेट्स प्रोवाइड किया जाए, एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड एज बिजनेस. सो व्हाट विल हैपन इज कि जब मान लो कि मेरा बिजनेस क्लोज होगा ना, तो उस टाइम पे जो उसके असेट्स होंगे वो बिजनेस के नाम से मैं अपने पर्सनल नाम पे विड्रॉ कर लूंगा. वो सारी चीजें मैं घर पे ले जाऊंगा अपने यूज के लिए. तो मैं ये पॉइंट बोल सकता हूं कि ओके, इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई and for which official I'll not give any consideration, but my capital which was given earlier, उसी के सामने तो मैं ये लेके जा रहा हूँ assets. So I think that can also constitute as consideration and business की definition को भी वो qualify करता है and that is why it is liable for GST and no doubt about that friends, भरना भी चाहिए. क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग अगर आप उस पॉइंट के हिसाब से नहीं बोलोगे तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस असेट आ जाएगा. क्योंकि असेट लाने के टाइम पे आपने आईटीसी तो लिया ही होगा और बिजनेस क्लोज हो गया. दैट मीन्स परमानेंट बेसिस पे बिजनेस में से ये असेट पर्सनल नाम पे ट्रांसफर हो गया. तो क्या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन. सो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट और उसमें फुल क्लैरिटी है. बट पॉइंट ये है कि मान लो कि मेरा बिजनेस चालू था पहले और चालू है अभी भी, बट जब बिजनेस चालू किया था तब मेरे पास बहुत सारी असेट्स थी. वो सारी असेट्स का मैं क्या करूं जब मैं बिजनेस में से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दूं. सो व्हाट विल हैपन इज, जब मैंने परचेज किया था ना तब मैंने शायद आईटीसी भी लिया होगा और मैंने वो आईटीसी लेके उस असेट को बिजनेस में यूज भी किया और जब बिजनेस में यूज किया तो बिजनेस में जहां जीएसटी लगता था वहां पे उसको सप्लाई मान के मैंने टैक्स भी भरा. अब पॉइंट ये है कि ड्यू टू सम रीजन ईदर माय प्रोडक्ट बिकम्स एग्जम्प्ट or let's say my product is still taxable but my turnover falls below 20 lakh and it remains below 20 lakh for a longer period, so I decide to discontinue my registration. So I'll surrender my registration.
So when I'll surrender my registration, it ceases to be a taxable person. The concern issue is, can it be called as supply? So logically speaking, वो supply के कोई chapter के कोई provision में नहीं आता है, ना वो 7(1)(a) में आता है. कोई बोले नहीं सर आपने कैपिटल के सामने, अरे भाई मैंने बिजनेस बंद थोड़ी किया है कि कैपिटल के सामने मैं असेट ले जाऊं. ना वो 7(1)(b) में आता है क्योंकि वो इंपोर्टेशन नहीं है, ना वो 7(1)(c) शेड्यूल 1 में आता है, क्योंकि पॉइंट ये है कि यहाँ पे दो पर्सन ही नहीं हो रहा है, एक ही पर्सन है. बिजनेस बंद होता है तो चलो भाई ओनर ले गया तो ओके, एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है, बट यहाँ तो एक ही पर्सन है और वो पर्सन जो पहले टैक्सेबल था वो आज एग्जम्प्ट हो गया है. तो कहीं पे भी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है. इनफैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज द असेट विल स्टिल कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द बिजनेस. सो देयर इज नो ट्रांसफर, पोजेशन भी नहीं ट्रांसफर हो रहा है. तो आप उसको सप्लाई के कौन से क्लॉज में लाना चाहते हो? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सेक्शन 7(1) के कोई भी क्लॉज को मैच ही नहीं कर रहा है. बट अगर आप 7(1) को इग्नोर करो तो हमारा लॉ कहता है कि इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर 7(1)(d). सो नाउ द डिबेट कम्स इन एज कि भाई अगर 7(1)(d) उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलता है तो क्या हम उसे सप्लाई मानेंगे, जबकि वो एक्चुअल सप्लाई के कोई क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रहा है. तो उसी प्रोविजन को 7(1)(a) करके जो प्रोविजन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1(a), सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1(a) जो हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई क्लियरली कि अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इफ विल फॉल अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई, then we will discuss that whether it is supply of goods or supply of services. Since this particular activity which is nowhere falling under section 7 subsection 1, so वो supply की definition में ही नहीं आता है. So as per section 7 subsection 1(a) वो कभी भी supply of goods की category में categorize होना ही नहीं चाहिए. So I think this provision is no longer relevant now. This has been purely overruled. तो थियोरेटिकली आज भी वो एक्ट में है, बट अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है. क्यों? बिकॉज जो सप्लाई ही नहीं है वो सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है? सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू कम्युनिकेट. आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड दिस इश्यू. इनफैक्ट क्लॉज में ये लिखा भी है कि कुछ केसेस में हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, जैसे कि अगर मान लो कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, यानी पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया है, तो जो बंदा बिजनेस परचेस कर रहा है वो उसी असेट के साथ कंटिन्यू करने वाला है. तो व्हाई यू शुड ट्रीट दैट एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ असेट बाय वन ओनर टू अनदर ओनर, बिकॉज यहाँ तो पूरा बिजनेस ही बेच दिया है. ऐसा हो सकता है ना कि ए लिमिटेड करके कंपनी है, वो पूरा बिजनेस ही आगे बी लिमिटेड को बेच दे, तो सारी असेट्स सारी लायबिलिटीज के साथ उसे बेच दिया है, तो बी लिमिटेड उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है. नाउ यू कांट टर्म दैट एज सप्लाई ऑफ असेट बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड बिकॉज assets have not been supplied, entire business has been supplied. So that will not be considered as supply of goods under this terminology. So ये point आपको always ध्यान में रखना है. दूसरा, the business is carried on by the representative. जब कहीं मान लो कि ओनर की डेथ हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड, क्योंकि यहाँ बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, असेट्स ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इट विल नेवर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ असेट बाय वन पर्सन टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो ये दो पॉइंट ऐसे थे जिसमें बोला था कि हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, बट जब से वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1(a) वाला अमेंडमेंट आया है ना फ्रेंड्स, ये पॉइंट कंप्लीटली ओवर रूल हो जाता है. एंड मोर इम्पोर्टेंट, ये जो अमेंडमेंट आया है वो आया 1 फरवरी को, बट आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. एंड सिंस इट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो प्रैक्टिकली ये पॉइंट आज बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है. दिस हैज कंप्लीटली एंड दिस हैज बिकम अ रिडंडेंट पॉइंट एट ऑल. So I think everybody understand what is called as supply of goods under schedule number 2. आइए बात करते हैं supply of services के अलग अलग examples की. Yes friends, now with regard to supply of services, so basically जहाँ कहीं पे भी ownership transfer नहीं होगा ना, frankly speaking all of them will fall under the terminology of supply of services. Let us talk about the first point. It very clearly says any transfer of undivided share in goods without transfer of title. So it is simple कि अगर मान लो कि मेरे गुड्स है, मैं आपको वो गुड्स को ट्रांसफर करता हूँ, so I am allowing you to use it. You have an undivided right to use it, but I am not giving you the ownership. So that is where we say it's a supply of services. And logical है friends.
जब मैं आपको कोई चीज लीज पे दूंगा, मान लो कि कोई मशीन है मैं आपको लीज पे देता हूं या मशीन में आपको रेंट पे देता हूं, तो जो हमारा लीज पीरियड होगा या जो रेंट पीरियड होगा उस पीरियड के लिए आपके पास उन गुड्स का अनडिवाइडेड शेयर होगा. सो आप उसे फुल्ली ऑक्यूपाई करोगे और आप उसे फुल्ली यूज करोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट. But that does not mean you will have an ownership of that. So I'm not transferring the title to you, but I am transferring the product to you for your use, and that is an undivided right that you have it. Then definitely we will consider that as supply of service. We will not consider it as supply of goods. It is purely supply of services. So that is, I think everybody understand as first example. Let us talk about the second one. So it is with regard to some immovable properties. So land हो या मान लो के बिल्डिंग हो या फिर मान लो के कोई हाउस हो या कोई मान लो के कोई ऑफिस हो. So I am giving it on lease, or I am giving it on tenancy basis, or it's an easement, or I am giving you a license to occupy such land, or I am letting you some commercial complex or building, then it will definitely called as supply of service. फिर चाहे मैं उसे आपको wholly यूज करने का राइट दे रहा हूं या मैं उसे आपको पार्शियली यूज करने का राइट दे रहा हूं. सो अगर मैं आपको wholly यूज करने दूं, मान लो कि मेरा एक घर है वो पूरा का पूरा मैंने आपको रेंट पे दे दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि उस घर में एक रूम आपको रेंट पे दिया है. सो इट्स अ पार्शियल राइट दैट आई एम गिविंग इट टू यू. सो एनीथिंग दैट आई डू दैट डेफिनेटली विल फॉल अंडर द टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. So I think that is clause number 2. Moving ahead with that, there is clause number 3, which talks about treatment on goods belonging to another person. I think this is the best example of job work. So मान लो कि अगर मेरे गुड्स है जो मैं आपको देता हूं, बोले ट्रीट करके दो, जिसको प्रोसेस करके दो और प्रोसेस गुड्स मुझे वापस देना, तो व्हाट यू आर डूइंग इज सप्लाइंग सर्विस टू मी. यू आर माय जॉब वर्कर. इनफैक्ट नॉट ओनली जॉब वर्क, इट कैन बी ब्रॉडली अंडरस्टैंड ऑल्सो. मान लो कि मैं टेलर के पास जाता हूं, अपना कपड़ा लेके बोलता हूं स्टिच करके दे, तो जो टेलर मुझे देता है वो भी तो एक टाइप का सर्विस ही हुआ. सो इट्स अ ट्रीटमेंट ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन. Treatment applied on goods belonging to some other person is purely supply of service. Moving ahead with that, there is a fourth example which says business की कोई भी asset जो private use के लिए रखी गई है, put for any private use or put to any private use on the directions or on the recommendations of the owner of the business, then it can be considered as supply of service. See, you need to understand कि business की asset permanent basis पे अगर आप transfer कर लो based on the recommendation of the owner, then it is supply of goods because it's a permanent base. But when you put to private use, so that means it's a business asset and it will continue to be business asset, but it has been just put to private use. So that means time being it has been used for private purpose, not for the whole time. मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे एसी है ये बिल्डिंग के अंदर. मान लो कि मेरे घर का एसी बिगड़ जाता है तो मैं हितेश सर से रिक्वेस्ट करके एक हफ्ते के लिए ये एसी घर पे ले जाता हूँ जब तक वो रिपेयर हो. तो देन इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस की कोई असेट है विच हैज बीन पुट टू प्राइवेट यूज बट नॉट ऑन परमानेंट बेसिस, रादर इट वुड बी डन ऑन टेम्पररी बेसिस. देन डेफिनेटली दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई ऑफ सर्विस and that is not supply of goods. अगर परमानेंट बेसिस पे फ्रेंड्स ये ट्रांसफर हो जाए ना, तो yes, I agree with you that it should be qualified as supply of goods. So I think everybody is clear with point number 4. Moving ahead with that, let us say point number 5 की मैं बात कर रहा हूं. So renting of immovable property, I think it is one of the easy thing to understand. Renting of immovable property including lease, including tenancy right, etc. So that is definitely considered as supply of service. इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. जो 6 नंबर का पॉइंट है, that is where we talk about construction. Now this is again going to be a debatable issue, one of the complex point that we have to understand. See, I believe everybody remember we have discussed sale of land and sale of building cannot be treated as supply as per Schedule 3. Schedule 3 याद होगा आपको, हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सप्लाई नहीं माना जाएगा. अब चलो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन कैसे होता है. सो मान लो कि एक बिल्डर है जो अपनी एक स्कीम लॉन्च करता है और अल्टीमेटली पूरा कंस्ट्रक्शन करता है. अब अलग अलग लोग ये प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टेड होंगे वो प्रॉपर्टी बुकिंग करवाते हैं. अब वो डिफरेंट स्टेजेस पे होता है. वही हमारा मेन बाइफर्गेशन एक्चुअली के कौन से स्टेज पे बुकिंग हुआ है. पॉसिबिलिटी नंबर 1, पूरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गया. कंस्ट्रक्ट होने के बाद मान लीजिए कि कोई कस्टमर बिल्डर को अप्रोच करता है और बिल्डर बोलता है कि ओके दिस इज द अमाउंट, लेट्स से 1 करोड़ रुपीज, एट दिस अमाउंट आई विल गिव यू द प्रॉपर्टी.
So builder will pass on the ownership of the property to the customer when he will pay 1 crore. So there will be a sale deed that will take place. So what will happen is उस टाइम पे हम ये बिल्डिंग को बेच देंगे या उस ऑफिस को या उस हाउस को बेच देंगे. So can I use the word as it's a supply of land? Can I use the word as it's a supply of building? Rather it's a sale of land, it's a sale of building, and since it's a sale of land, it's a sale of building, so as per schedule 3 this will never be called as supply. But मान लो कि इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. जब प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक कस्टमर आता है, अप्रोच करता है, बोले मुझे ये प्रॉपर्टी के अंदर 10 नंबर की ऑफिस चाहिए. वो उसका बुकिंग करवाता है, उसके लिए एडवांस अमाउंट देता है. जब वो एडवांस अमाउंट देगा तो हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे. कोई बोले क्यों एग्रीमेंट करेंगे? तो कि अभी हमें सेल डीड नहीं कर सकता, अभी मैं बेच नहीं सकता. क्यों नहीं बेच सकता? अरे जो चीज है ही नहीं वो बेचूं कैसे? अभी तो वो बनने वाला है, बनने के बाद बेचूंगा, उसके पहले कैसे बेच दिया? पॉइंट तो यही है ना फ्रेंड्स. देखो मैं पूरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लूं, उसके बाद आप मेरे पास आते हो और मैं आपको बेचता हूं प्रॉपर्टी, तो इट इज सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग. एज पर शेड्यूल 3 इट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी. बट जब मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप मेरे पास आते हो, मेरे पास बुकिंग करवाते हो, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें बेच थोड़ी सकता हूं. जो है ही नहीं उसको मैं बेचूं कैसे? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ यू कि भाई मैं आपके लिए ये चीज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. जब कंस्ट्रक्शन होगा तब मैं आपको दे दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा. तो दैट मीन्स जब मैं आपके लिए ये चीज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो इट इज एज गुड एज आई एम प्रोवाइडिंग यू कंस्ट्रक्शन सर्विस. और जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो इट इज ऑलवेज लायबल फॉर जीएसटी. वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा फ्रेंड्स. वापस बोल रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बिल्डिंग बन रहा होता है ना, तब अगर कोई कस्टमर आता है और बुकिंग करवाता है तो हम उससे एक ही एग्रीमेंट करेंगे कि मैं ये तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्ट करूंगा और जब कंस्ट्रक्ट होगा ना तब सेल डीड करके तुम्हें बेच दूंगा. बट जब मैं तुम्हारे लिए ये कंस्ट्रक्ट करूंगा तो इट इज एज गुड एज आई एम सर्विंग यू. एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज entire construction gets completed. When the building gets ready, then I am selling it to you. So when I am selling at that point, because तब मुझे तुम approach करते हो. If you approach me at that point of time, and at that point of time if I give you building or rather I'll give you a office or house, then it is as good as sale of land, it is sale of building, जो schedule 3 के हिसाब से GST के लिए liable नहीं है. So only deciding factor is building complete हुआ उसके बाद में customer आके बुकिंग कर रहा है और पैसा ले रहा है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था तभी कस्टमर आके बुकिंग कर रहा है और पैसा दे रहा है. वो एक ही चीज है जो हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर बनता है. अब इसमें भी बहुत सारे कंसर्न्स आएंगे. कोई बोलेगा कि सर मान लो कि एक फ्लैट है, टोटल पूरा स्कीम है 100 फ्लैट्स है उसके अंदर, उसमें से 60 फ्लैट्स ऐसे हैं जिसका पैसा जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तब आ गया था, और 40 फ्लैट ऐसे है जिसका पैसा जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाए उसके बाद आता है, यानी तब बुकिंग होता है. तो जो 40 फ्लैट है, 40 फ्लैट्स which are where customer is approaching only after the completion certificate, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में BU सर्टिफिकेट बोलते हैं. BU माने बिल्डिंग यूज परमिशन. सो जब बिल्डिंग रेडी हो जाए, कंस्ट्रक्ट हो जाए, उसके बाद कस्टमर मेरे पास आता है and he asked me to sell the flat to him, तो obviously वो sale of land, sale of building के कारण schedule 3 से बाहर निकल जाएगा. But when that property is under construction and at that point of time if a builder comes, if a customer comes and I enter into an agreement with him, then in that case I'll construct this property for you, for them, and that is where we will consider it as supply of service. So only deciding factor is completion certificate के पहले पैसा आया कि completion certificate के बाद में आया. अब टोटल 100 में से अगर 60 का पैसा पहले आ रहा है और 40 का पैसा कंप्लीटली 40 फ्लैट्स का अग्रीमेंट ही बाद में होता है, सेल डीड ही बाद में होता है, तो उसके ऊपर कहीं जीएसटी नहीं लगेगा. और जो 60 फ्लैट्स है जिनका पैसा पहले आ चुका है तो उस केस में ऑब्वियसली जीएसटी अप्लाई होगा. इनफैक्ट मैं बताऊं, इसमें एक और कंसर्न आता है. समवन वुड से कि सर 60 फ्लैट्स का पैसा पहले आया, बट जरूरी थोड़ी है कि फुल पैसा पहले आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा अमाउंट पहले आए और बाकी का अमाउंट बाद में आएगा. तो फ्रेंड्स उसका आंसर भी बहुत क्लियर है कि अगर मान लो कि 60 फ्लैट्स है, उसमें से 10 फ्लैट ऐसे हैं जिसका 100% पैसा पहले आ गया, 10 फ्लैट ऐसे है जिसका 10% पैसा ही पहले आया है, और बाकी के फ्लैट ऐसे है जिसमें 50% पैसा पहले आया है. इररिस्पेक्टिव के कितना परसेंट अमाउंट पहले आया,
The point is, even if 1 rupee will come in advance, so it will always fall under the supply definition, service definition, and it will always be liable for GST. 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है ना फ्रेंड्स, मान लो कि उसमें से 1 लाख रुपया भी बुकिंग स्टेज पे आ गया, पहले स्टेज पे आ गया, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देन इन दैट केस दैट एंटायर 1 करोड़ रुपीज इज लायबल फॉर जीएसटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उसमें से 1 लाख ही पहले आता है या पूरा का पूरा 1 करोड़ पहले आता है. एंटायर अमाउंट इज लायबल फॉर जीएसटी. दिस इज द पॉइंट. सी फ्रेंड्स, इट सेज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स building, civil structure or part intended for sale to a buyer is considered. So अगर मैं buyer को sale करने के लिए अगर construction कर रहा हूं तो it is as good as I am serving it. But यहाँ पे clearly बोला है except where entire amount of consideration, full consideration, no part, entire amount of consideration is received after issue of completion certificate. क्यों? Because completion certificate issue होने के बाद अगर customer आता है, बाद में पैसा देता है, तो it will straight away fall under sale of land, sale of building, and that is where in that case it is nowhere liable for GST. But जब under construction stage होता है और तब customer आता है, तब कस्टमर अपना पैसा देता है, तो उस केस में दिस विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सो आई बिलीव एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि भाई कंस्ट्रक्शन स्टेज पे पैसा आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन के बाद पैसा आ रहा है, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड दैट वेदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस or it will neither be called as supply of goods nor be called as supply of services. So I think everybody is clear with point number 6. Moving ahead with that, we have a 7th number point which says transfer of any IPR. I think IPR everybody understand as an intellectual property right. तो जब intellectual property right किसी को transfer किए जाएंगे, so it is like मेरे पास अपना एक copyright है, मेरे पास अपना brand name है, वो brand name में अगर किसी को use करने दे रहा हूँ, तो it is definitely treated as supply of service और उसके ऊपर मुझे GST भरना ही पड़ेगा as service. Moving ahead with that, there is one more point which is related to, there are 4, 5 more points which relates to what can be called as supply of service. Let us talk about the subsequent point. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.